ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ ہلو جی ہاں جی بولیے۔ ہاں جی اب صحیح ہے، اور سب خیریت ہے؟ رتن کاشمی صاحب جی جی بڑی اچھی بات ہے جی۔ حضرت ایک شیعہ کے تعلق سے علماء دیوبند کیا کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں شیعہ حضرات کے تعلق سے؟ اچھا جی کیا فرماتے ہیں؟ رات کے 10 بجے کون فرماتا ہے؟ نہیں مطلب کچھ موقف تو ہوگا نا، رات یا دن کوئی موقف تو اپنا ہوتا ہے نا، ایسا تو نہیں کہ رات کو کچھ اور ہو جاتا ہے دن میں کچھ اور ہو جاتا ہے نا۔ میں آپ کو ایک کلیئر بتاتا ہوں آپ کو۔ جی فرمائے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ 2 فرقوں کے علاوہ سب مسلمان ہیں، ایک شیعہ اور ایک قادری۔ اچھا، ایک شیعہ اور قادری۔ شیعہ، لیکن وہ رشید احمد گنگوئی صاحب تو ان کو مسلمان مانتے ہیں۔ کن کو؟ شیعہ کو۔ ہاں میں علامہ انور شاہ کشمیری کی بات کر رہا ہوں، باقی چلو ماننے کی تو ہم نے ساروں کا ٹھیکہ تو لے نہیں رکھا ہے۔ لیکن حضرت وہ تو قطب الاقطاب کہے جاتے ہیں اور ایک منٹ سن لے۔ ہاں جی، وہ قطب الاقطاب کہلاتے ہیں، اکابرین کہلائے جاتے ہیں، وہ تو پہلے کے ہیں نا۔ جی وہ تو بہت بڑے اکابرین میں سے شمار ہوتے ہیں علماء دیوبند کے رشید احمد گنگوئی صاحب، اس لیے میں نے ایسی بات کہی۔ کوئی عام لوگ رہتا تو میں اس کو نظر انداز کر دیتا تھا۔ دیکھو آپ میں بتا رہا ہوں آپ کو جی، آپ جو ہے پڑھے لکھے لگ رہے ہیں مجھے، آپ اپنے حساب سے دیکھو گے کہ شیعوں کے کیا کیا عقیدے ہیں۔ جی دیکھے نا، جی میں نے دیکھے۔ ہاں جیسے کہ اس حساب سے آپ جو ہے نا الگ الگ علاقوں کے حساب سے جو ہے نا، علاقے میں کوئی لوگ متشدد بہت زیادہ ہیں، شیعوں کے اندر بھی کئی فرقے ہیں۔ کیا تھا کسی نے ان کے علاقے میں کوئی ایسا فرقہ ہو جو مطلب جو ہے نرمی والا ہو کوئی، یا اس کا کوئی حساب کتاب ہو۔ لیکن علامہ انور شاہ کشمیری نے مجموعی طور پر کہا ہے کہ 2 فرقوں کے علاوہ لوگوں کو کفر کا فتویٰ مت لگاؤ، خدا کے لیے امت کو متحد رہنے دو۔ پوری امت کا اتفاق ہے کہ 2 فرقوں کے علاوہ باقی سب مسلمان ہیں۔ اچھا 2 منٹ میری بات سن لیجیے۔ میں اختلاف ہوتا رہتا ہے جی 2 منٹ سن لیجیے۔ اب جیسے کہ آپ نے بات کہی کہ کسی علاقے میں شیعہ حضرات ایسے ہوں گے جو نرم دل ہوں گے، ہے نا، تو لیکن ان شیعہ سے کیا لینا دینا؟ وہ ان کے جو اکابرین لکھ کے گئے ہیں پہلے کے، جو 400-500 ہجری کے ہیں، اور بہت پہلے یعنی 1000 سال 1200 سال کہہ لیجیے، 1100 900 800 سال پہلے کہہ لیجیے، جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، جیسے ملا باقر مجلسی ہو گیا، اور تمام لوگ یہ بڑے بڑے ان کے جو محدث مانتے جو، تو انہوں نے ایسی ایسی کتابیں لکھی ہے کہ جیسے حق الیقین ہو گئی، اور بھی دیگر کتابیں ہیں، تقریباً 6 کتابیں۔ انہوں نے یہاں پر صاف طور سے لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر سے روایت ہے، جھوٹی روایت لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے وصال کے بعد دنیا میں صحابہ اکرام جو تھے صرف 4 رہ گئے تھے، باقی نماز اللہ رب العالمین نعوذ باللہ صبح استغفر اللہ، فرماتے ہیں کہ 4 صحابہ کے بعد تمام صحابہ مرتد ہو گئے تھے، اسلام سے پھر گئے تھے۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ آپ بتائیے۔ ایک بار بتاؤ نا، میں آپ کو صفحہ نمبر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 930 پر لکھے یہ بات۔ دیکھو میں بتا رہا ہوں آپ کو، دیکھو جو ایمان کی شرطیں ہیں نا پوری، اگر ان کا کوئی انکار کرتا تو وہ تو کافر ہو جائے گا۔ صحیح بات ہے۔ صحابہ پر ایمان لانا کوئی شرط نہیں ہے، صحابہ کا اکرام کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس آدمی کو فاسق کہہ سکتے ہیں، جیسے آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، روزہ نہیں رکھ رہا ہے، حج نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن سنیے، لیکن وہ صحابہ اکرام کو نعوذ باللہ کافر کہتے ہیں، کافر۔ اور آپ کو مسئلہ ہے بالکل عام طریقے سے موجود معلوم ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی کسی کو کافر کہتا ہے، اگر سامنے والا کافر نہ ہو تو کفر اس کے اوپر لوٹ آتا ہے۔ تو نعوذ باللہ صحابہ تو منزل ہے، ہمارے صحابہ تو منزل ہے، جیسے کہ ان بنی اسرائیل تفرقت علی ثنتین وتفترق امتی، یہ حدیث شریف آپ نے سنی ہوگی، بڑی مشہور حدیث ہے نا۔ ویسے بھی قرآن میں رضی اللہ عنہ ورضوان، جی وہ بشارت وہاں پر، اور جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ جنتی ہے۔ اب صحابہ کو ہی کوئی مسلمان نہیں مانتا، توبہ استغفر اللہ، تو پھر وہ کون سی منزل پہ چلنے کا دعویٰ کرتا ہے؟ میں بتا رہا ہوں، جی فرمائیں۔ دیکھو معاف کرنے والی ذات کون ہے؟
अल्लाह रब्बुल इज्जत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत है ना। यार बिल्कुल हमें क्या लेना है, हमारा अकीदा ये है कि भाई सहाबा इकराम की अजमत जो है ईमान का हिस्सा है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है ना, ये है ना हमारा अकीदा। बिल्कुल हम बिल्कुल उनका एहतराम भी करते हैं। बेआई ये एक बता, तुम यही दे करके अगर उनमें से किसी की भी पैरवी कर लोगे तो जन्नत में चले जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब हाँ, अब ये है कि भाई उनका मामला उन्होंने किस नजरिए से कहा है, उनका क्या हिसाब किताब है, वो तो अल्लाह जानता है, ठीक है ना। जी मैंने लेकिन इबारत पढ़ के लेकिन सुनाई थी कि मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। मैं चले मेरी बात बताए सुनो। बताए। हाँ, दूसरी बात यह है कि मामला तो ये अल्लाह के दरमियान और उस बंदे के दरमियान है, ठीक है ना। आदमी ठीक को, है। हर आदमी का जो है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम, है नी, अपने आप को, वहाँ अपने अहलियकुम परिवार नारा। को। हाँ ठीक है ना। ये जी जो है हमें जो है आस पड़ोस में जो हमारे मिलने जुलने वाले, उन्हीं की दावत है ना, जहाँ तक आदमी की रसाई है। जी या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलियकुम नारा। ऐ ईमान वाले हाँ अपने आप को जहन्नम से और अपने अहले अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। हाँ, यानी अहलो याल में वो लोग आते हैं जो मिलने जुलने वाले हैं, परिवार है, रिश्तेदार है ना। खास तो करके बहरहाल करामतदार ये, अपने। हाँ तो बहरहाल बात यह है कि भाई जब हमारे पास कुरान है, हदीस है, अगर किसी बुजुर्ग की बात हमारी समझ में आती है कि ये कुरान हदीस के मुताबिक है तो हम उसको ले लेंगे। अगर नहीं है तो चाहे मौलाना रशीद अहमद गंगोई क्या इमाम मुजद्दिद अल्फ सानी क्यों ना हो, हम उसकी बात को नहीं लेंगे, ठीक है। समझ में आ रही है? हाँ मुझे समझ में आया, 2 मिनट मुझे बोलने दें जरा सा। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कुरान हदीस के मुताबिक कोई बात हमारी समझ में आ रही है तो उसको हम ले लेंगे। वरना इमाम अबू हनीफा ही क्यों ना हो, चाहे इमाम मालिक क्यों ना हो, चाहे वक्त का मुजद्दिद क्यों ना हो, मुजद्दिद अल्फ सानी रहमतुल्लाह अलैह क्यों ना हो, अच्छा एक अगर मिनट सुन उनकी लीजिए मेरी बात। कोई कुरान मेरी बात भी हदीस के सुनेंगे तो मुताबिक समझ नहीं। में आ जाएगी। मेरी जी बात भी जी सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि ये सहाबा इकराम का जो मसला है वो अकीदे का मसला है, ठीक है ना। हम सहाबा इकराम को अकीदे में मानते हैं कि वो मोमिन है, वो अल्लाह के वली है और नस्ल साबित है सहाबा इकराम का। अगर कोई इनकार करता है तो काफिर है, क्योंकि जगह जगह पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बशारत दी है सहाबा इकराम को, कहीं पर खिताब नाम के साथ दिया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 सहाबा इकराम को तो जन्नती साबित करार दिया है, नाम लेकर के जन्नती किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लेकर 10 सहाबा इकराम को मुबशरा जो हाँ 10 अशरा मुबशरा है, तो उन्हीं को जब तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की बशारत दी है, अब उन्हीं को नऊज़ुबिल्लाह कोई तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मेरा दिल भी नहीं ऐसे गवाही देता, लेकिन क्या है मैं नकल कर रहा हूँ सिर्फ। तो वो कहते हैं कि नमाज़ल्लाह इस्लाम से मुर्तद हो गए थे, फिर गए थे इस्लाम से। और जो इस्लाम से फिरने का फतवा दे कि नऊज़ुबिल्लाह सहाबा इकराम फिर गए थे, और उन्हीं को रशीद अहमद गंगोई साहब मुसलमान मानते हैं। जैसे कि इबारत में एक बता देता हूँ, फतावा रशीदा सफ़ा नंबर 291 में वो कहते हैं जो लोग शिया को काफिर कहते हैं, ठीक है ना, उनके नजदीक तो इसकी नाश को वैसे ही कपड़े में लपेट उसकी लाश लपेट देना चाहिए। और जो लोग फासिक कहते हैं उनके नजदीक तकबीर व तकफीर जो जब फायदा एक मिनट सब कायदा होना चाहिए। और फरमाते हैं रशीद अहमद गंगोई साहब, और फरमाते हैं कि और बंदा उनकी तकफीर नहीं करता, शिया के तकफीर नहीं करता। अच्छा तो जो सहाबा इकराम की तकफीर करे और फिर उनकी तकफीर ना किया तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, सहाबा का मसला है ना। देखो हमारा जो ईमान है कि सबका इकराम करो। उनके कई इख्तलाफात भी रहे, जैसे ये जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अमीर माविया के लोग बहुत सारे जो है अमीर माविया के ऊपर भी तान करते हैं। ठीक है करते हैं ना कि नहीं करते हैं? सही है। बाकी दिल से भी जो है, मिसाल तौर पर आप ही हैं, आपका दिल कहेगा यार आले रसूल की तरफ होना चाहिए, है ना? नहीं मैं ऐसा नहीं है। देखिए तमाम सहाबा की हम बहुत इज्जत करते हैं, आले रसूल की बात नहीं है। अगर एक तरफ नहीं बटना चाहिए, डिस्टर्ब हो जाता है इंसान। देखो एक तो आपको देखो आले रसूल से एक कुदरती फितरी मोहब्बत है ना, बिल्कुल है, से हमारा ईमान है, यकीन है। लेकिन मसला ये है ना, सुन लीजिए, मसला ये है ना कि आले रसूल की मोहब्बत में किसी दूसरे साहबी को भी बुरा भला कहना भी जायज नहीं है। नहीं गलत है। यही है कि भाई वो उनका मसला था, जाती मसला था यार, हमने उससे क्या लेना, हम सब का इकराम करते हैं। यही बात फरमा रहे, बस यही बात मैं फरमा रहा हूँ। उनका अपना जाती मसला है, दानी मसला में हम कैसे बीच में पढ़ सकते हैं? उम्मत के मामू है हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हमारी औकात क्या है?
औकात क्या है। तो बहरहाल पता नहीं उनका क्या मौकूफ रहा होगा। वो मैंने जो है हाँ बस वहाँ हमको पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, वहाँ पढ़ना ही नहीं, हमको मौदूदी ने भी मना फरमाया है। हाँ, तो अब जो है कोई मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का जो है अल्लाह ने नसीब करे, उनका क्या मौकूफ रहा होगा ये मैंने जो है, अब तो जब दारुल में पढ़ा करते थे उस टाइम तो बताला था। अब मदरसे के चक्कर में लगे हुए हैं, बच्चों को नाजरा हिफ्ज़ वगैरह की तालीम है, यहाँ वहाँ मुताला करने का तो टाइम लगता नहीं। तो आप समझ के मुझे भी बता देना इसका क्या हिसाब किताब है, क्या है पीछे की बात, आगे पीछे सियाको सवाल देखे ना। कौन सी किताब बताई आपने? किताब फतावे रशीदिया की 2 इबारत है, मैं दोनों आपको इबारत में भेज देता हूँ। एक तो मैंने पढ़ के सुनाई थी, दूसरी और पढ़ के सुना देता हूँ जो सफा नंबर 274 पे है। आप ऐसा करो ना, आप उसको क्लिक करके भेज दो मुझे ना। भेज दिया मैंने। एक पढ़ के भी सुना देता हूँ मैं। एक और लिखा है कि जो शख्स सहाबा इकराम में से की तकफीर करे वो मलून है, ऐसे शख्स को इमाम मस्जिद बनाना हराम है और वो अपने इस गुनाह कबीरा से सुन्नत जमात से खारिज ना होगा। मतलब सिर्फ वो मलून है, लानती है, ठीक है ना, लेकिन वो मुसलमान ही है। जो सहाबा इकराम की तकफीर करे वो मुसलमान ही है। अब जो सहाबा इकराम की तकफीर करे क्या वो मुसलमान है? नहीं, वो तो मुश्किल काफिर है ना। हाँ, यही बात मैं कह चाहता हूँ। मैंने दोनों इबारतें मैंने आपको पर्सनल भेज दी है, आप गौरव फिक्र कर ले। अगर आपको ऐसा लगे तो आप सुबह में जब चाहे तब कॉल कर सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह भेज दिया मैंने आपको, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। हेलो जी, रोशन कासमी साहब। जी मैंने कल आपको फोन किया था, बात हुई थी हमारी आपकी, मुझे याद है कल रात में। जी तो आप मुफ्ती साहब है या आलिम साहब है? मैं आलिम हूँ। अच्छा, चलिए माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। बात भी आपको आसानी समझ में आएगी कि आलिम है तो आप। तो जैसे मैंने आपको हवाला भेजा था, क्या फरमाते हैं उसके बारे में आप? यार मेरा आप हवाला लेके जो है आगे क्या मतलब, आप अपनी इस्लाह करना चाहते हो या आगे बात फैलाना चाहते हो, किसी को बताना चाहते हो? जी आगे बताना चाहता हूँ। और देखो बात सुनो, ईमान के लिए अमनतु बिल्लाह पढ़ी आपने? जी अमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व किताब में अमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि, फरिश्तों पे ईमान लाया, व कुतुबी और उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर और क़यामत के दिन पर है, अच्छी और बुरी तकदीर पर और हिसाब वाले दिन पर है। बिल्कुल बिल्कुल। ईमान मुफस्सल क्या है? कमा हुआ अमनतु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइहि, मैं अल्लाह के जितने भी नाम हैं उनके ऊपर ईमान लाया, जितनी भी सिफात हैं उनके ऊपर ईमान लाया, और जो अहकाम नाज़िल किए उसने उसके ऊपर ईमान लाया। और दिल से भी यकीन करता हूँ और जुबान से भी इकरार करता हूँ। जी ये है ना, ये ईमान की जो है ईमान मुफस्सल और ईमान मुजमल में इनका जो है सहाबा इकराम की ताज़ीम तो बताई है हुजूर ने, लेकिन जो लोग वो जो क्या नाम शिया हजरात हैं, ठीक है ना जी, जैसे आदमी जो है नमाज का इनकार करने वाला क्या है? काफिर है। कुरान की किसी भी आयत का इनकार करने वाला काफिर है। लेकिन कुरान के हुक्मों को, आदों को तो हम भी नहीं, जैसे मिसाल तो हमारे माशरे में चोरी है, हम चोर को मुसलमान ही कहते हैं। जी बिल्कुल। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो फिल वक्त इंसान छोड़ता है, जैसे कि नमाज भी है। कुरान में नमाज में बहुत जगह का हुक्म है। कुरान में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मन तरका सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर। हाँ, ये भी है। तो इसका जो है ना उलमा ने मतलब निकाला है कि नमाज के मतलब जो है अहमियत को बताने के लिए बताया है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जी, यहाँ पे उलमा ने बताया है कि मन तरका सलाता मुतअम्मिदन फक़द कफर, जितने एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़े उसने कुफ्र किया। तो यहाँ पे उलमा यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पे कुफ्र अमली है, एतकादी नहीं है, मतलब वो गुनहगार होगा, काफिर नहीं होगा। हाँ, उसका इनकार करता तो काफिर हो जाएगा। तो ये जो आपने जो है ना 2 चीजें जो भेजी हैं जी, इसमें जो हजरत ने जो है ना और इस्लाम के अंदर जो है ना कुफर का फतवा पता कहाँ रहता है? जी, जहाँ बिल्कुल मतलब जो है कोई हद ना हो। इसका जो है जो मुफ्तियाने किराम के लिए ये नहीं कि भाई आरे गहरे के ऊपर हर एक मसले के ऊपर जो है फतवा ठोक दे, ठीक है ना। मुफ्तियाने किराम के लिए ये भी नसीहत होती है कि आप आखिरी हद तक जहाँ कोई चारा ना हो वहाँ जो है कुफर का फतवा लगेगा।
ठीक है ना। तो कुरान को मानते हैं, सहाबा इकराम को कुछ बाज को मानते हैं, बाज को नहीं मानते हैं। तो वो आप ये भी अंदाजा लगाओ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कबीला ओरेना एक था ना कबीला, वो आया था और उन्होंने कलमा पढ़ा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि भाई हुजूर आप ही हमें कोई दवाई बताओ, हमारे जो पेट फूले हुए हैं। तो नबी पाक ने उनको भेज दिया कि भाई जाओ फलां जगह ऊँट हैं, उनका दूध भी पियो और उनका पेशाब भी पियो। हाँ, ये बुखारी शरीफ में हदीस शरीफ है ना जी। तो उन्होंने जो है वो पेशाब भी पिया और दूध भी पिया, तकड़े हो गए, ठीक ठाक हो गए। और उन्होंने फिर बाद में जो है सहाबा इकराम को कत्ल किया, शहीद किया, उसके बाद वो सारे जानवर लेके भाग गए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजा दी, मुर्तद भी हो गए हैं नहीं। हाँ, ये काफी तवील हदीस है। हाँ, काफी तवील हदीस है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई देखो इब्तिदा कुफर का फतवा जो ना आखिरी हद में लगता है। गुनाहगार हैं सहाबा इकराम के, तो हजरत ने जो है ना इसी के ऊपर जो है कहा है कि मैं कुफर का कायल नहीं हूँ, यानी आखिरी हद तक नहीं किया उन्होंने। कोई जो है इमाम मुफस्सिल और इमाम मुजमल में से किसी का इनकार नहीं किया है। तो सहाबा इकराम को जो बुरा भला कहने वाला गुनाहगार तो हो सकता है, मलऊन हो सकता है। हजरत इसमें बुरा भला, एक मिनट सुन लीजिए, इसमें बुरा भला की बात नहीं है। फतावा रशीदिया में जैसे इबारत में उन्होंने जो बताया ना उनकी बात आप समझे नहीं ना। सुन ले, एक बात सुन ले, मैं इबारत फिर से एक बार पढ़ता हूँ। और वो आप वो अनवर शाह कश्मीरी वाली कौन सी किताब का हवाला बता रहे थे कि कादियानी और शिया को काफिर मानते हैं? आप किताब पढ़े हैं? अल्लामा अनवर शाह, मैं हजरत अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के पास पढ़ा हूँ, मैंने बुखारी शरीफ पढ़ी है। तो उनके बख्तार से फारिग हूँ, तो उन्होंने जो है ना इसकी फैजुल बारी में लिखा है क्या? हाँ जी, फैजुल बारी में लिखा है उन्होंने? नहीं, मैंने उनके दर्स के अंदर उन्होंने खुद मतलब जो है ना दर्स के अंदर हम बैठे हुए तो उन्होंने ये बात कही थी कि भाई कुफर कर जो है आप जो मुफ्ती बन जाओगे उलमा। नहीं वो बात नहीं, वो बात नहीं हजरत, मैं वो बात नहीं कर रहा। जैसे मतलब आप मेरी बात समझे नहीं, जैसे कल वाली बात आप बता रहे थे कि अनवर शाह कश्मीरी साहब ने वो बात कही थी कि शिया और कादियानी को छोड़ करके तमाम लोग को मुसलमान मानते हैं। वही तो बता रहा हूँ, मैं हजरत के दर्स में बैठा हुआ था उस टाइम जो ना हम जो मुनाजरे में शोभा मुनाजरा में मैं भी रहा हूँ। तो हजरत आए प्रोग्राम में भी, उसके अलावा जो है ना हमारे एक प्रोग्राम में हमने बुलाया था जी। तो काफी जो है बहस मुबासा हुआ शोभा मुनाजरा के अंदर। जो है हमारे काफी साथी थे, कुछ के अंदर थे, कुछ में के अंदर थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो चलो बात अलग है, आप यहाँ बहस करते हो, लेकिन जो है हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह कहा जी आप फरमाया कर रहे थे अक्सर कि अल्लाह के वास्ते कुफर का फतवा, जैसे आप जो है ना देवबंदी बरेलवी देवबंदियों पर कभी हम अहले हदीस के ऊपर बरस पड़ते हैं, कभी जमात इस्लामी के ऊपर। तो उनको कहा गया यार आपने कुफर का फतवा ठेका ले रखा है कुफर का फतवा लगाने का, थोड़ा सा जो है ना आखिरी हद को भी देखा करो और अल्लाह के वास्ते उम्मत को बांटो मत। हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी जो उनके साहबजादे थे वो उन्होंने अब उनका अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी का कौल नकल किया था उस दिन दर्स में कि आप जो है ना दो जो है फिरके हैं जिनके ऊपर कुफर का फतवा है। मतलब किसी किताब से उन्होंने बताया था या फिर सिर्फ ऐसे ही बताया था, ऐसे जुबानी? नहीं, उन्होंने दर्स में बताया था। मैंने किताबें जो शिया की जो शिया हज़रात की मैंने पढ़ी भी कम है भाई, सुना तो है कि भाई शिया जो है ये काफी गलाजत बकते हैं। हाँ बहुत। तो जैसे ये वो बता रहे थे हाजी अहमद गेगी साहब करतारपुर में, आप ये जो ना इधर हैं कुछ शिया हज़रात हैं, वो बता रहे कि भाई यहाँ की जो शिया की जो है कुछ अकीदे हैं, जैसे जुम्मा के बारे में कहते हैं कि भाई जुम्मा भी फर्ज नहीं है, ये है वो, कई चीज़ों का वो करते हैं। हाँ, बड़ी गुमराही है उनकी। हाँ, बड़ी गुमराही है। तो शियों के बारे में इंशाल्लाह मुताला करूँगा, फिर आपको बताऊँगा। बाकी जो है ना इनके जो है अल्लामा अनवर शाह जो इन्होंने लिखा है हजरत ने लिखा है कि जो लोग शिया को काफिर कहते हैं उनके नज़दीक उसकी नाश को वैसे ही कपड़े में लपेट कर दबा देना चाहिए, नहीं यही मतलब है ना? हाँ, कुफर का कि जो कुफर का फतवा लगाते हैं। और जो लोग फासिक कहते हैं उनके नज़दीक उनकी तजहीज़ और तकफीर हस्ब कायदा होना चाहिए और बंदा भी उनकी तकफीर नहीं करता। इनकी तकफीर नहीं करता। हजरत का बयान ये है कि भाई हजरत फासिक समझते हैं उनको।
तकफीर नहीं करता, यानी उन्हें काफिर नहीं कहता। हाँ, फासी कहते हैं। और हालांकि ये मसला ये है कि शिया हजरात जो है, आपको मालूम होगा, चले कोई बात नहीं, आपने मुताला नहीं किया है तो हवालाजात मैं आपको दे दूंगा, जिसमें आपको खुले तौर पर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, एक मिनट सुन ले हजरत, एक मिनट सुन ले, और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु, इन सहाबा इकराम जो हैं, इन सबको खुले तौर पर, ऐसा नहीं कि मतलब कोई ढके छुपे अल्फाजों में, खुले तौर पर ये लोग माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन नकरे कुफ्र न बासा, ये कहते हैं माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन काफिर हैं ये। तो किसी भी आम इंसान को भी काफिर कहना, खुद काफिर हो जाना, अगर वो काफिर ना हो तो ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बुखारी शरीफ से लेकर तमाम किताबों में हदीस आसानी से आपको मिल जाएगी, है ना, आप पढ़े। तो सहाबा इकराम तो समझ लीजिए मंजिल है, वो हमारी मंजिल है जी, सहाबा इकराम मंजिल है। अब उन्हीं को ही अगर कोई दायरे इस्लाम से खारिज करने की नापाक कोशिश करता है तो ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी जसारत है ना। नहीं, जसारत तो भी है। और जो है ना, इन्होंने जो है मियां मीर के बारे में सुना आपने? मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह जो है ना, जिसने ये हरमंदिर साहब का नींव पत्थर रखा था, मियां मीर के पास ना उस दौर के अंदर जो है वो लोग आए, शाहजहां के दौर के अंदर। शाहजहां की जो बेगम थी ना, वो शिया थी, नूरजहां। तो उन्होंने जो है ईरान से जो है शिया हज़रात को बुलाया था, ये सुना है आलिमों को, कि भाई आप इधर से आओ, सिंध की साइड से जो है अफगानिस्तान होते हुए, सिंध होते हुए, ये वाकया सुना है मैंने, तवील वाकया है वो। हाँ, पंजाब से होते हुए। तो हजरत के पास जो है वो मियां मीर के पास पहुंच गए। मियां मीर ने सोचा भाई ये सूफी है, इसके बड़े मानने वाले हैं, तो अगर ये मान गए तो फिर यहाँ जो इलाके के अंदर इनके जो मरीजी ने वो भी हमारा जो है दबदबा मान लेंगे। मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह के पास गए तो उनको जाके कहा कि भाई हम सहाबा किराम की जो है ना शान बयान, ना आले रसूल की हम शान बयान करना चाहते हैं, आप बयान करो। उन्होंने बयान किया कि भाई इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के आसपास में अगर कोई मैयत दफन हो जाता है 100 किलोमीटर के अंदर, तो उसका हिसाब किताब नहीं होगा और वो कब्र का अजाब भी नहीं होगा। तो हजरत ने जो है, उनको पता था हजरत को कि ये हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गालियाँ देते हैं। तो उन्होंने पूछ लिया कि भाई इमाम हुसैन को जो ये मर्तबा किस लिए मिला? कहा नवासे रसूल होने की वजह से। कहा जब नवासे रसूल का ये मकाम है तो नाने का क्या मकाम होगा? बिल्कुल। और नाने के साथ जो है जो सोए हुए हैं उनका क्या मकाम होगा? जी बिल्कुल। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो वो जो है ना वहीं से वापस हो गए कि भाई यहाँ के सूफी इतने पढ़े लिखे हैं तो यहाँ के आलिमों को क्या हाल होगा, वहीं से वापस हो गए थे वो। तो बहरहाल ये जो है ना शिया हज़रात को जो है ना वो जो आले रसूल के साथ ज्यादती हुई है, उसकी वजह से जो है ना इन्होंने जो है शर्मिंदगी के आलम में ओल फोल जब बकवास करना शुरू कर दिया, उनकी एक तंजीम बन गई है। तो बहरहाल जो है ना ये तजहीज़ और तकफीन वाला मामला जो है ना हज़रत ने जो बयान किया है खड्डे वाला, वो भी ठीक है। और दूसरा मैं इसलिए कहता हूँ कि जब आदमी चला ही गया है तो कपड़ा डालने में क्या आ जाए? ऐसी मिसाल तौर पे अब हमारे नहीं, मतलब नहीं, आप अगर कुरान में सूरह तौबा आखिरी आयत पढ़ेंगे, सूरह तौबा की आयत में है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक मुनाफिक था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी कब्र पर गए, उसकी मैयत, उसकी जनाजा पढ़े, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मना फरमा दिया कि आप अब्दुल्लाह इब्न उबई जो है मुनाफिक था, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वहाँ पे मना कर दिया, यानी जो पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया था फिर अल्लाह ने मना फरमा दिया। तो ये हुक्म तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद अल्लाह ने दिया, तो उम्मत के लिए भी वही हुक्म आएगा। जी वही हुक्म है। तो शिया भी तो एक तरीके से मुनाफिक ही कहलाते हैं ना, अगर कह लीजिए तो। सामने अगर सामने आप सहाबा इकराम की, एक मिनट सुन ले, इस्लाम को नुकसान शियों से पहुंचा है, इतना किसी से नहीं पहुंचा है। हाँ बस वही मैं कहना चाहता हूँ ना। अब वही इबारतें जो शिया की किताबों में मिलती है, वही मिलती जुलती इबारतें मिली है। जैसे कि आपने दो बातें कही थी अनवर कश्मीरी साहब के बारे में कि वो कादियानी और शिया के बारे में वो ये कहते हैं कि उनके, हाँ, तो ये दोनों बातें और आपके एक मिनट सुन ले जी, ये दोनों के बारे में उलमा देवबंद की किताबों में मैंने पढ़ा है
इन दोनों को ही मुसलमान माना है, बल्कि इस कदर मुसलमान माना है कि अगर आप कादियानी को काफिर कहेंगे ना तो वो आपके तकफीर करना शुरू करेंगे, लेकिन कादियानी को काफिर नहीं कहेंगे। ये बड़े अकाबिर में से, जैसे मौलाना याकूब साहब जो है, जो कासिम नानोती साहब के ज़माने के थे, उन्होंने खुद कहा है कि अगर कादियानी की ही तकफीर करना है तो क्यों ना तुम्हारी की जाए, जो उनके पास ये मसला लेकर आया। तो कहते हैं कि अगर कादियानी को ही काफिर कहना, तकफीर करना, तो इससे बेहतर ये है कि तुम्हारी ही तकफीर क्यों नहीं की जाए। उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही थी। नहीं, मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, और ये भारत में भी देखिए साफ तौर पे है कि सफ़ा नंबर 274 पे कि कहते हैं कि जो शख्स सहाबा इकराम में किसी की भी तकफीर करे वो मलून है, हालांकि तकफीर करने वाला खुद काफिर हो जाएगा खुले तौर पर, ये इजमाई बात है ना। तो मलऊन है, ऐसे शख्स को इमाम मस्जिद बनाना हराम है, और वो अपने इस गुनाह कबीरा से सुन्नत जमात से खारिज ना होगा। मुझे नहीं समझ में आता कि अगर कोई सहाबा इकराम की नऊज़ुबिल्लाह तकफीर करने के बावजूद फिर भी वो मुसलमान ही रह जाता है, तो फिर कोई गैर मुस्लिम भी तो खुले शिया भी कर सकता है, तो उनको हम कैसे काफिर कह सकते हैं। इस बिना पर कि सहाबा इकराम की तकफीर करता है, तो वो अगर ये इबारत उठा के देगा कि भाई हम तो सहाबा इकराम की तकफीर करते हैं, लेकिन आपके अकाबिर खुद लिख रहे हैं कि सहाबा इकराम की तकफीर करने पर भी मुसलमान ही रहेगा, तो फिर जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सही है जी। अच्छा, एक बात जो है ना, आप शिया जो है ना, शिया जी, कादियानी जो शिया तो पहले के दौर के लोग थे, जो कादियानी हजरात हैं। कादियानी जो हैं ये जो शुरू में जो है ना, इसके कई लोग जो हैं इसके पखंड थे पहले शुरू में। ये कहता था मैं एक वली हूँ, फिर उसके बाद इसने और आहिस्ता दावा किए। तो इसके बारे में वो तो मैंने तमाम उसकी किताबें पढ़ी है मैंने। हाँ, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की जो है शायर मशरक़ी जो है, वो भी इनकी तरफ रुझान हो गया था। हाँ, उनके भाई कादियानी या उनके वालिद कादियानी हो गए थे। हाँ, इनके बारे में भी आता है कि भाई ये भी रुझान था। तो अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के पास गए, तो उन्होंने कहा कि भाई पहले अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के इल्म के बड़े कायल थे ये। तो वहाँ मुलाकात करने के लिए गए, तो उन्होंने हजरत ने कहा कि भाई पहले कलमा पढ़ के आ। तो वो बड़ा आदमी था, वो समझ गया कि भाई मैं जो कादियानियों की तरफ मेरा ज़हन है। ने फरमाया, तो वो गया, जाके गुस्ल किया, नहा के फिर कलमा पढ़ के फिर आया। कहा मैंने जो उस गुनाह से तौबा कर ली जिसकी तरफ आपने इशारा किया था। तो इसके बारे में शुरू में तो काफी उलमा के अंदर भी इख्तिलाफ हुआ कि ये शायद कोई वैसे ही है। इसने आस्ते जो है लोगों को जोड़ते फिर बाद में नबूवत का दावा किया। हाँ, जैसे मतलब वो तो मुझे मालूम है उसने कब नबूवत का दावा किया। काफी बातें तवील है, जैसे कि उसमें ये बातें पाई गई कि मलफूज़ात हकीमुल उम्मत जिल्द नंबर 19 सफ़ा नंबर 96 में तो यह बात है। देखिए जरा सुनिएगा। वो कहते हैं कि जिस वक्त कादियानी के बारे में बाद उलमाए नजाब मौलाना याकूब साहब से इसके अक़वाल नकल करके गुफ्तगू कर रहे थे, तो मौलाना उनकी तावील कर रहे थे। ठीक है ना, मौलाना साहब उनकी तावील कर रहे थे। जब उन्होंने ज़्यादा इसरार किया तो बतौर दराफत फरमाया कि मियाँ जहाँ हिंदुस्तान में 5 गिरोह मुसलमान के हैं वो भी सही, और उन उलमा ने कहा कि नहीं, हजरत तकफीर की ही मसलियत है। तो उस वक्त मौलाना को जोश आया और फरमाया, जब मुसलमान ही की तकफीर करना है तो तुम्हारी ही क्यों ना की जाए। ठीक है ना। वो कहते हैं कि अगर कादियानी को खुले तौर पर कहा कि वो मुसलमान ही है, उनकी तकफीर करना नहीं जरूरी है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जो हिंदुस्तान के अंदर जो है ना इस्लाम का जो है इस्लाम आया है, ज्यादातर जो मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह के जो है दौर के बाद जो कुछ उनके दौर में आया है, तो बाद में जो है ना ये सूफी जो लोग हजरात जो है ना, इस किस्म के जो लोग आते रहे और कलमा पढ़ाते रहे, तो जाते रहे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह और सरकार बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह। जी। तो अब जो है ना उनका सिस्टम ये था कि ये बुजुर्गों के जो ये हिंदुस्तान के एक ज़हन ही था कि भाई वलियों को ज्यादा मानते थे। ठीक है ना। अब मानना में जब उन्होंने कलमा पढ़ाया था, तो ये कादियानियों के बारे में हजरत जो है ना शुरू में जो है मैंने आपको बताया कि कुफर का फतवा सिर्फ मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी भी नहीं दिया था। सबसे पहले जो जितने भी उलमा, चाहे देवबंदी थे, चाहे बरेलवी थे, चाहे किसी भी मसले के थे, वो ये सोचते थे कि कोई वली है ये और इसको लोग मान रहे हैं,
चलो हमने क्या लेना है, चलो कम से कम कल तो दीन की तरफ से लगाएगा, तो फिर इसकी जो है ना खबासत जो है बाद में जाहिर हुई है। तो ये मेरे ख्याल में मौलाना याकूब साहब जो है ना, उनका शायद ये पहले का वाक़या होगा। नहीं, पूरी कंप्लीट बात है। देखिए मैं एक बार फिर से सुनाते हैं, एक बार गौर करिएगा जरा सा। देखिए क्या लिखा हुआ है कि जिस वक्त कादियानी के बारे में बाद उलमाए नजफ मौलाना याकूब साहब से उनके अक़वाल नकल करके गुफ्तगू कर रहे थे, तो मौलाना उनकी तावील कर रहे थे, ठीक है ना। मौलाना उनकी तावील फरमा रहे थे। जब उन्हें ज्यादा इसरार बतौर ज़राफ़त फरमाया कि मियाँ जहाँ हिंदुस्तान में 5 गिरोह मुसलमान के हैं, एक वो भी सही। उन उलमा ने कहा कि नहीं हजरत, तकफीर की ही मसलियत है। उस वक्त मौलाना को जोश हुआ और फरमाया जब मुसलमान ही की तकफीर करना है तो अच्छा तुम्हारी ही क्यों नहीं की जाए। तमाम उलमा जो भी थे उस वक्त उस पर मुत्तफिक थे, उनकी तकफीर कर रहे थे। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की उसकी तकफीर कर रहे थे, मलून की, ठीक है। लेकिन वो बगैर सोचे समझे तावील फरमा रहे थे। उनकी तावील फरमाते यहाँ तक बात ले आए कि कह रहे कि अगर कादियानी को ही तकफीर करना है तो तुम्हारी ही क्यों नहीं की जाए। हालांकि अगर देखा जाए आमतौर से बात की जो आए होंगे ये बात लेकर उनके पास में, जाहिर सी बात है उनके अपने ही होंगे, तो गैरों को काफिर करार ना दे करके अपने को ही काफिर कह रहे हैं कि भाई उनके कादियानी की तकफीर नहीं करना तुम्हारी की जाएगी। अच्छा, नहीं उन्होंने ये कहा कि भाई देखो, वो आप बात समझिए, उन्होंने ये कहा है कि भाई मुसलमान ही को काफिर कहना है, तो फिर तो अगर हम उनको अगर मतलब मुसलमान ही को कहना है, कुफर का फतवा देना मुसलमानों के ऊपर, तो फिर तो तुम्हारे पर भी दिया जा सकता है। ये कहने का मकसद है उनका। नहीं, ऐसा नहीं हजरत, ऐसा नहीं है। देखिए क्या पे लिखा है, वो साहब कहते हैं कि तकफीर की मसलियत है। तो उस वक्त मौलाना को जोश हुआ, फरमाया कि जब मुसलमान ही की तकफीर करना है, यानी खुले तौर पर कहा कादियानी, इनकी बात उन्हीं की चल रही थी ना, बात उसी की चल रही थी, मिर्जा की चल रही थी। तो उनको वहाँ पे साफ तौर से कहा कि जब मुसलमान ही की तकफीर करना है और जब मिर्जा की तकफीर करना है, ऊपर में बिल्कुल वजाहत है कि उनके कौल नकल करके गुफ्तगू कर रहे थे, ये बातें सब। और मौलाना उसकी तावील कर रहे थे। किसकी तावील कर रहे थे? जो मिर्जा ने लिखा है, जैसे उनके मुरब्बी वगैरह तावील करते हैं बात की कि नहीं ऐसा नहीं लिखा है, वैसा है, उसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। तो मौलाना याकूब साहब भी उसकी तावील फरमा रहे थे। लास्ट में जब वो बहुत सारी बातें हुई तो उन्होंने लास्ट में ये बात कह दी कि अच्छा छोड़ो, जब मुसलमानी की तकफीर करना है, यानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की उसके बकौल तकफीर ही करना है, तो तुम्हारी करते हैं, लेकिन मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को हम मुसलमान ही कहेंगे, तकफीर उसकी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एकदम वजाहत से यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको हवाला जैसे मैंने कल 2 भेजा था ना, तो भी ये मैं भेज देता हूँ, और भी कुछ हवाले जैसे मैं आपको भेज दूंगा, आप इस पर गौर फिक्र कर लीजिएगा। ठीक है इंशाल्लाह। चलिए मैं भेज देता हूँ, आप एक बार गौर फिक्र कर ले। जैसे मैंने इबारत पढ़ी है वैसे ही बिल्कुल है, आप एक बार गौर फिक्र कर ले तो अच्छा रहेगा। ठीक है इंशाल्लाह। चलिए ठीक है।